یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ بصرہ شہر میں ایک گناہگار شخص رہتا تھا جس کی زندگی بے مقصد تھی۔ وہ شخص دن رات شراب پیتا، چوریاں کرتا، غرض ہر طرح کے گناہوں کا عادی تھا۔ پھر اس شخص کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن وہ بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے دو آدمیوں کو نان بائی کی دکان پر جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک انتہائی غریب جبکہ دوسرا امیر شخص تھا۔ اتفاق سے نان بائی کے پاس ایک ہی روٹی بچی تھی اور اسے غریب آدمی خرید چکا تھا۔ اسی وقت وہ امیر آدمی آیا اور 2 گنا پیسے دے کر نان بائی سے کہنے لگا، یہ روٹی مجھے دے دو کیونکہ میں اس کے زیادہ پیسے دے رہا ہوں۔ نان بائی نے زیادہ پیسوں کے لالچ میں وہ روٹی امیر شخص کو دے دی۔ غریب آدمی نے جب یہ دیکھا تو بہت افسردہ ہوا اور کہنے لگا، خدا را ایسا نہ کرو، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں اور میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، انہوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا اور اگر آج رات میں انہیں کھانا نہ دے سکا تو وہ بھوکی رہ کر بیمار ہو جائیں گی۔ لیکن امیر آدمی نے اس غریب کی آہو بقا کی پرواہ نہ کی۔ اس نے کہا، میں اس روٹی کی زیادہ رقم ادا کر رہا ہوں، میں اس کا حقدار ہوں، تم اپنا بندوبست خود کرو۔ وہ گناہگار شخص دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب امیر آدمی روٹی لے کر جانے لگا تو اسے یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا اور وہ نان بائی کی دکان کی طرف دوڑنے لگا۔ ایک گناہگار شخص کے دل میں پہلی مرتبہ رحم کی چنگاری بھڑک اٹھی تھی اور یہی اس کی زندگی کو تبدیل کرنے والی تھی۔ وہ امیر آدمی کے پاس گیا اور کہا، یہ روٹی اس مسکین آدمی کو دے دو تاکہ اس کی اولاد بھوکی نہ رہے۔ اس نے جواب دیا، تم اپنے کام سے کام رکھو، میں یہ روٹی ہرگز اسے نہیں دوں گا۔ اس پر گناہگار شخص نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 4 گنا زیادہ رقم نان بائی کو دیتے ہوئے کہا، اب تو تمہیں اعتراض نہیں، یہ روٹی اس غریب آدمی کو دے دو۔ نان بائی شرمندہ ہوا اور اس نے امیر شخص کی بجائے اب وہ روٹی غریب کو دے دی۔ غریب آدمی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جب وہ روٹی لے کر جانے لگا تو گناہگار شخص نے اس سے کہا، آج رات جب تمہاری بیٹیاں کھانا کھائیں تو ان سے کہنا میرے لیے بھی دعا کریں، خدا تو معاف کرنے والا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب کوئی توبہ کرے تو میں اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں۔ اس گناہگار شخص کو بھی دل ہی دل میں احساس تھا کہ وہ گناہوں کے راستے پر چل رہا ہے، لیکن وہ بہت گہرائی میں ڈوب چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس دلدل سے کیسے باہر نکلے، لیکن جب دل میں خوف خدا آ جائے تو ہدایت مل جاتی ہے۔ اس شخص نے اپنی زندگی کا قصہ یوں بیان کیا، ایک دن میں تمام فکروں سے لاپرواہ گلیوں میں چل رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی جس کی عمر 5 سال سے زیادہ نہ تھی۔ وہ بہت معصوم اور پیاری تھی اور اسے دیکھتے ہی میرے دل میں کچھ ہونے لگا، جیسے کوئی مجھے سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہو۔ میں جب گھر پہنچا تو دعا کی، اے اللہ، یہ کیسا احساس ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ پھر میں نے شادی کر لی اور کوشش کرتا رہا کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، لیکن گناہوں سے بچ نہ سکا۔ کچھ عرصہ بعد اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی عطا کی جس کا نام میں نے فاطمہ رکھا۔ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بن گئی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا، اس کے ساتھ کھیلتا اور اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن جب میں گھر میں بیٹھا شراب پینے کے لیے پیالہ اٹھا رہا تھا تو فاطمہ میری گود میں آ کر بیٹھ گئی، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جیسے ہی میں شراب سے بھرے پیالے کو اپنے لبوں تک لے جانے لگا، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور وہ پیالہ میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ اس وقت میں نے سوچا، فاطمہ، تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو اس کے کیے کی سزا دیتا، لیکن اللہ نے میرے دل میں فاطمہ کے لیے اتنی محبت ڈال دی تھی کہ میں نے اسے گلے لگا لیا اور اسے پیار کیا۔ میں نے اسی دن ارادہ کیا اور شراب پینا ہی چھوڑ دی کیونکہ فاطمہ مجھے ہر چیز سے پیاری تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں ایک بہتر انسان بن گیا۔ فاطمہ اب 5 سال کی ہو گئی۔ وہ مجھے اسی چھوٹی سی لڑکی کی یاد دلاتی تھی جو مجھے راستے میں دکھی اور میری زندگی بدلنے میں مدد کی تھی۔ لیکن پھر اللہ نے مجھے ایک عظیم آزمائش میں مبتلا کیا۔ فاطمہ کچھ دن بیمار رہی اور مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں شدید غم میں مبتلا ہو گیا اور سمجھ نہ پایا کہ کیا کروں۔ میں نے دوبارہ شراب پینا شروع کر دی، اس امید پر کہ غم کم ہو جائے گا۔ دن کیا اور رات کیا، میں بس شراب کے نشے میں رہتا۔ ایک رات میں نشہ کی حالت میں بے سدھ پڑا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ میں اٹھا اور دیکھا کہ لوگ افراتفری میں دوڑ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں یا کس سے بھاگ رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ دوڑنے لگا۔
दौड़ते दौड़ते मैं थकने लगा और देखा कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप था। मैं जितना तेज दौड़ता वो सांप भी उतना ही तेज हो जाता। मैं दौड़ता रहा यहाँ तक कि एक पहाड़ के पास पहुँच गया। वहाँ मैंने एक बुजुर्ग को देखा जिनकी दाढ़ी, बाल और कपड़े भी सफेद थे। वो बहुत ज़ईफ और कमजोर नजर आ रहे थे। मैंने उनसे कहा, ऐ बुजुर्ग, अल्लाह के वास्ते मुझे इस सांप से बचाएं, मेरी मदद करें। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं बहुत कमजोर हूँ, इस काबिल नहीं कि तुम्हें इस सांप से बचा सकूं। तुम ऐसा करो, उस पहाड़ की तरफ जाओ, शायद वहाँ कोई तुम्हारी मदद करे। मैं पहाड़ की तरफ भागा। वो सांप अब भी मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। भागते भागते जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो मैंने वादियों में देखा कि जहन्नुम का मंजर है। लोग जल रहे थे, सजाएं पा रहे थे और अजाब में मुब्तला थे। ये सब देखकर मैं डर गया और उस पहाड़ से नीचे उतरा और दोबारा उसी बुजुर्ग से जा मिला। मैंने उनसे फिर मदद मांगी। उन्होंने जवाब दिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा मैं कमजोर हूँ, तुम फिर पहाड़ों की तरफ जाओ, शायद अब की बार तुम्हारी कोई मदद करे। मैं फिर से पहाड़ की तरफ दौड़ने लगा और एक सरसब्ज व शादाब मकाम की तरफ बढ़ा। ये जगह पहले वहाँ मौजूद न थी। जैसे ही मैं उस जगह के करीब पहुंचा तो मुझे कुछ बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई दी। मैं उनकी आवाज सुन सकता था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहे थे। जब मैं करीब पहुंचा तो मुझे बच्चों की ऊंची आवाजें सुनाई दी। फातिमा, जल्दी आओ, इस शख्स को बचा लो, इसकी मदद करो। मैं सोचने लगा, क्या ये मुमकिन है कि ये मेरी अपनी बेटी फातिमा हो जिसका इंतकाल हो चुका था। जैसे ही मैं और करीब पहुंचा उस बच्ची की शक्ल वाज़े होने लगी। मैंने पहचान लिया, ये वाकई मेरी बेटी फातिमा थी। वो अपने बाजू फैलाए हुए थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो कि मैं आकर उसे गले लगाऊं। जैसे ही मैं करीब पहुंचा तो फातिमा ने मुझे गले लगा लिया। उसने मेरा एक हाथ अपने दाएं हाथ में पकड़ा और अपने बाएं हाथ से उस काले सांप को दूर धकेल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है और ये जगह कौन सी है। मैंने फातिमा से पूछा, तुम बताओ ये सब क्या है। फातिमा ने कहा, ऐ मेरे वालिद, आए यहाँ मेरे पास बैठे। हम एक दरख्त के नीचे बैठ गए और फातिमा मेरी गोद में आकर बैठ गई। उसने मेरी दाढ़ी से खेलना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो दुनिया में करती थी। फातिमा कहने लगी, ऐ मेरे वालिद, ये कयामत का दिन है। वो काला सांप जो आपने देखा वो आपके गुनाह थे। आपके गुनाह इतने ज्यादा और ताकतवर हो चुके थे कि अगर मैं ना होती तो वो आपको तबाह कर देते। मैंने फातिमा से उस बुजुर्ग के बारे में पूछा जिसने 2 मरतबा मुझे यहाँ पहाड़ पर भेजा। फातिमा कहने लगी, वो बूढ़ा आदमी जिसके कपड़े सफेद और चेहरे पर नूर था, वो आपके नेक अमाल थे। वो इतने कमजोर और इतने कम थे कि आज आपके लिए किसी फायदे के काबिल नहीं थे। ऐ मेरे वालिद, अब वक्त आ गया है कि आप खुद को बदलें। फिर उसने कुरान की एक आयत पढ़ी, क्या ईमान वालों के लिए इस बात का वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की नसीहत और जो दीन हक नाजिल हुआ है उसके सामने झुक जाएं। मैं उसी वक्त नींद से जाग गया और मेरी आंखों से आंसू जारी थे। फिर मैंने अजान की आवाज सुनी। मैंने वजू किया और मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा। जब नमाज शुरू हुई तो मैं हैरान रह गया। इमाम साहब वही आयत पढ़ रहे थे जो फातिमा ने मुझे पढ़कर सुनाई थी। अब मेरे लिए गुनाहों की जिंदगी बसर करना मुमकिन न रहा और मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत का रास्ता दिखा दिया। वो शख्स कोई और नहीं, हजरत मालिक बिन दीनार थे, जिनकी जिंदगी को इस वाक़े ने बदल कर रख दिया। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है, लेकिन फैसला हमेशा हमारा अपना होता है कि हम किस रास्ते का इंतखाब करते हैं। इस वाक़े के बाद मालिक बिन दीनार ऐसे तायब हुए कि दोबारा शराब को हाथ तक न लगाया और पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। वो अपने वक्त के ताबईन में एक अजीम रहनुमा बने। दोस्तों, मालिक बिन दीनार वो पहले ताबई थे जो हिंदुस्तान के इलाके में आए। उनके नाम से एक मस्जिद आज भी भारत के एक शहर में मौजूद है। बनी इसराइल का एक शख्स चोरी, डकैती और कत्लो गारत में मशहूर था। उसके अंदर एक दरिंदा बसता था और रहम के मानी से वो नावाकिफ था। उसकी परवरिश एक सख्त माहौल में हुई और इसी माहौल में उसने बचपन ही से कत्ल करना और इंतकाम लेना सीख लिया। वो महज 10 साल का था जब वो अपने गांव के एक लड़के के साथ झगड़े में मुलव्विस हुआ। ये झगड़ा तेजी से एक शदीद लड़ाई में बदल गया जो एक चाकू के वार के साथ खत्म हुआ और दूसरा लड़का उसके सामने जान की बाजी हार गया। साल गुजरते गए और वो एक माहिर कातिल बन गया। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कत्ल नहीं करता था, बल्कि दूसरों को खौफजदा करने और अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के मौके ढूंढता रहता। 30 साल की उम्र तक वो 99 जानें ले चुका था।
जुर्म के इस गहरे समंदर में डूबने के बाद उसके दिल में निदामत के बीज आहिस्ता आहिस्ता उगने लगे। शायद ये उन डरावने ख्वाबों की वजह से था जो उसे आधी रात को जगा देते। एक रात वो अपने शिकस्ता घर के एक कोने में बैठा अपनी तारीख जिंदगी के बारे में सोच रहा था। न उसका कोई खानदान था, न दोस्त, सिर्फ नाजायज तरीके से जमा की गई दौलत और बदनामी थी जो हर जगह उसका पीछा करती। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे गुनाहों का बोझ महसूस हुआ। अब वो तौबा करना चाहता था, लेकिन इतने कत्ल करने के बाद वो नाउम्मीद था और सोचता था कि इसकी तौबा का दरवाजा शायद बंद हो चुका है। अगले दिन वो गांव के एक बुजुर्ग के पास गया और पूछने लगा, क्या मेरे गुनाहों की माफी मुमकिन है? मैं इस तारीक रास्ते को छोड़ना चाहता हूँ। उस बुजुर्ग ने उसे दूर एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पहाड़ पर जाओ, वहाँ एक इबादत गुजार शख्स रहता है जो दीन की बातों को समझता है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। वो नाउम्मीद था, इसलिए कांपते कदमों के साथ पहाड़ की तरफ अपना सफर शुरू किया। घंटों तवील सफर के बाद वो एक छोटे से झोंपड़े तक पहुंचा जिसके इर्द गिर्द खामोशी और सकूत छाया हुआ था। उसने दरवाजा खटखटाया। इबादत गुजार शख्स बाहर आया और उसने अपने सामने ऐसे शख्स को देखा जिसके चेहरे की सख्त लकीरों और आंखों में गुनाहों का बोझ नुमाया था। वो इबादत गुजार शख्स के सामने बैठ गया और अपनी खौफनाक कहानी बयान करने लगा। ऐ शेख, मैं 99 कत्ल कर चुका हूँ। मैं जालिम और बेरहम था, लेकिन अब मैं सुकून की तलाश में हूँ, तौबा के रास्ते की तलाश में। क्या मुझ जैसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है? शेख ने अपनी अक्ल से कियास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान ले सकता है उसकी मगफिरत कहाँ से होगी। चुनाचे उसने कहा, तुम्हारे गुनाहों का कोई हिसाब नहीं, तुम जैसे गुनाहगार की तौबा कबूल नहीं होगी। जब उसने शेख का ये जवाब सुना तो गुस्से और मायूसी में उसने बगैर सोचे समझे अपनी छुरी निकाली और इबादत गुजार शख्स को मार डाला। अब वो 100 आदमियों को कत्ल कर चुका था। शेख को कत्ल करने के बाद भी उसे सुकून न मिला, बल्कि उसके बरक्स उसके दिल पर जुर्म का बोझ मजीद बढ़ गया। वो एक मर्तबा फिर से गांव की तरफ पलटा और लोगों से पूछने लगा, क्या कोई है जो मुझे बता सके कि मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं? मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। आखिर लोगों ने उसको बतलाया कि फलां जगह एक अजीम आलिम रहता है जो अपने इल्म और हिकमत के लिए मशहूर है। उसके पास जाओ, शायद तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। आलिम के पास पहुंचकर उसने अपनी जिंदगी की कारगुजारी सुनाई और बताया कि मैं 100 लोगों का कत्ल कर चुका हूँ। क्या मैं तौबा का हकदार हूँ? क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मगफिरत की गुंजाइश है? उस आलिम ने जवाब दिया, अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। उस आलिम ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफर करके जाओ, वहाँ अल्लाह के कुछ बंदे रहते हैं और उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफी मांगो। ये सुनकर उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। वो अब अपनी मंजिल की तरफ चल निकला। जब उस गुनाहगार शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मौत का फरिश्ता आ पहुंचा और मौत उस पर वारिद हुई। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत और अजाब के फरिश्ते नाजिल हुए। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से तायब होकर इबादत के लिए जा रहा था। उधर अजाब वाले फरिश्ते कहने लगे, इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया और गुनाहों में डूबा रहा, इसे तो हम अपने साथ ले जाएंगे ताकि ये अजाब का मजा चखे। इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता इंसान की सूरत में नमूदार हुआ। उसने दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान फैसला किया कि दोनों बस्तियों के फासले की पैमाइश कर ली जाए। जहाँ से ये शख्स आ रहा था, यानी जहाँ इसने गुनाह किए, और जहाँ को जा रहा था, यानी सच्ची तौबा और इबादत की गर्ज से। जिस बस्ती का फासला कम हुआ, इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार किया जाए। चुनाचे पैमाइश की गई तो वो निस्बतन उस बस्ती के करीब पाया गया जिसके इरादा से वो चला था, यानी नेकी और तौबा की मंजिल। अब रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह को अपने साथ ले लिया। चुनाचे अल्लाह की तरफ से उसकी तौबा की कबूलियत और मगफिरत का ऐलान हुआ। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।